Ladies and gentlemen, right now it's time that we begin with our last session for the day. The session is a lovely one. It's about the art of managing families and business. Today we have our speaker, Mr. Parimal Merchant. Dr. Parimal Merchant is the director of SP Jain School of Global Management. With 25 years of specialization, he's the in charge of Global Family Managed Business, FMB, a distinctive year-long program for the next generation of business families. His interactions with over 6,000 students from family businesses, he has developed a matchless insight into family business, culture of Asia, and given numerous conferences on issues of FMB. Ladies and gentlemen, we have our moderator, Mr. Kamlesh Shah. And उन्होंने कहा है मुझे कि नाम ही काफ़ी है कमलेश शाह का, तो can we round of applause for Mr. Kamlesh Shah, as he says, as we all know, that he needs no introduction. We also have Mr. Piyush Gupta and Mr. Jaideep Gandhi. Ladies and gentlemen, it's time that I hand over the stage and the mic to Kamlesh Shah. He'll be taking over the session as a moderator. Good afternoon, everybody. I welcome Dr. Parimal Merchant for this session on family managed business. He's an authority on this subject, and many of our entrepreneurs in our industry have trained under him and succeeded, which everybody knows. For example, the most relevant example is Ankit Agarwal from Z Black. He is also their student. There are many others, I don't recollect. Even Shabda Mehta is his student. And there are many others. Some of our members, their children are still taking education under him. So I request Dr. Merchant to please take the stage and guide us as to how we all can progress and what are the challenges we have in our family businesses. So Dr. Merchant. फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर एसोसिएशन में ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है एंड आई नो लॉट ऑफ फैमिलीज इनटू दिस बिजनेस. मैं घर घर की कहानी बोल सकता हूँ. आई कैन टेल यू अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन एवरी हाउस. वन जनरेशन विच इज रनिंग द बिजनेस कॉन्स्टेंटली एक ही बात बोलते हैं, अब धंधे में पहले जैसी मजा नहीं रही. एंड नेक्स्ट जनरेशन को बोलते हैं यू डू समथिंग बेटर. इन माय ओपिनियन दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक business people are doing by undervaluing their own achievement in life and the potential that their next generation have there for their life. जिनका family business में जन्म हुआ है, those who are born in business families are extremely lucky, provided they know that they are lucky. Family business is a transfer of wealth, is a very small thing. Really speaking, family business is the transfer of wisdom. Family business is a transfer of wisdom, is a small thing. The real thing is, family business is the transfer of values, of the attitude, of the courage, of the challenge. I went to Masai Mara. केनिया में वाइल्ड लाइफ का मसाई मारा का जगह है. He will take you in an open jeep next to the lion. अभी हम लोगों ने तो सुना है lion बहुत dangerous होता है. We are very much worried about lion, but they will take you very close to the lion, and lion is sleeping. Then that guy will instigate the lion by pressing accelerator high and making noise and making noise. Then lion will look at you and again go to sleep. Then the driver will explain you about the life of lions in Masai Mara.
He will tell, for a lion to succeed in a hunt is extremely difficult. कहाँ पे एक डियर का वेट, कहाँ पे एक लायन का वेट, कहाँ से लायन डियर को पकड़ सकता है? And you must have heard about this dialogue, na? That the deer is running for its life and lion is running for its food. How can a lion catch a deer? 9 out of 10 times the lion fails in getting the hunt. तो मैंने वो गाइड को पूछा, do not this lion sit together and start tell, अपने नेक्स्ट जनरेशन को बोलते हैं ये शिकार बहुत लफड़े का चीज है, छोड़ दो, घास खाना चालू कर दो, घास तो हर जगह मिलेगा, यू डोंट हैव टू वरी एनीथिंग, यू जस्ट वॉक अराउंड एंड यू विल गेट ग्रास. तभी वो मेरे गाइड ने बोला, फॉर लायन टू हंट कितना भी डिफिकल्ट हो, वो कभी अपने बेटे को घास खाना नहीं सिखाएगा. He will always tell about hunting. And that is what is actually the analogy. A business person means a lion. Lion का मतलब काम क्या है? Everything challenges only. एक साहब ने फैक्ट्री लगाई 1977 में, 1987 में 10 साल खत्म हुए. By the time he settled, factory is settled, हाथ में खुजली आती है. Now I want to start another factory. Family business means only one thing, खतरों के खिलाड़ी, people who are fighters. And once upon a time, in India, and of course in your industry also, people were fighters. पिछले 15-20 साल में सब हवा निकल गई. Most of the family businesses, if they look back in the year 2000, what were they doing and what they are doing now, you will see a very big gap. I tell all the person who are in business to look back in the year 2000, what kind of challenges were you telling? Today people are saying compliances बहुत बढ़ गए हैं. But in the year 2000, एक C form देना पड़ता था ना, C form भी मिलता नहीं था. And so much of the scarcity of C form, पैसा तो आ गया, but अगर C form नहीं आया ना तो बहुत झमेला होता था. But at that time they never said, business में झमेला बहुत है. Because they were in the fighting mode. Something happened in India in the year 2000, post 2000 to 2010, every business ने इतना पैसा कमाया, देश से सपने में भी नहीं सोचा था इतना पैसा हमने कमाया in the period 2002 to 2010. 12, 14, बस उसके बाद में अभी इतना पैसा कमा लिया है. सडनली लोगों ने धंधे करने के बदले में आस्था चैनल देखना चालू कर दिया. पैसा कमा के क्या करना है? हमने चालू किया था तभी अपने पास में क्या था? टुडे व्हाट वी डोंट हैव, सब कुछ तो है. और फिर और भी आता है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है. एंड सडनली द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम बिजनेस टू डूइंग योगा. वॉक करने चले लोग, डाइटिंग करने लगे, मेडिटेशन करने लगे. ये मैं आपको पूछता हूं, इन ईयर 2000 इन योर फादर और ग्रैंडफादर कितना योगा किया उन्होंने, कितनी मेडिटेशन की, कितना बॉटल्ड वाटर पिया? कुछ नहीं हुआ था. बट सडनली द अटेंशन शिफ्टेड फ्रॉम बिजनेस टू सेकेंडरी मैटर्स. एंड फाइनली टिल द ईयर 2000 बिजनेस में एक चीज बोला जाता था, दैट वाज कॉल्ड अ कार्डिनल सिन. सबसे बड़ा पाप है अगर बिजनेस करना है तो. व्हाट इट वाज? पॉलिटिक्स एंड बिजनेस हैव नथिंग टू डू विथ ईच अदर. इन द ईयर 2000 अगर कोई भी आदमी बिजनेस करता है तो ही वॉज वेरी क्लियर, भाई कोई भी गवर्नमेंट है, हमें क्या लेना देना, हमें फोकस है अपना बिजनेस में.
पिछले 5 साल में ये रूल भी टूट गया। अभी तो रूल कितना स्ट्रांग है, जैसे अभी माहौल डल है थोड़ा, एनवायरनमेंट में एनर्जी नहीं है, तो बस एक चीज बोलना है, क्या लगता है मोदी जी के बारे में, और देखो क्या गर्मी आ गई। हमारे स्टूडेंट को बोलते देखो आजकल कहीं पे भी धंधा करना है ना बहुत इजी है, सामने वाले को जज कर लो पहली 2 मिनट में, प्रो मोदी है एंटी मोदी है। अगर प्रो मोदी है ना, बोलो इंडिया में ऐसा प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंस से मिलता ना तो आज जापान को ओवरटेक कर लेते, आपका काम हो गया। द होल पॉइंट इज, अगर मैं प्रो मोदी हूं मुझे 1 रुपया नहीं मिलने वाला है, और अगर मैं एंटी मोदी हूं वैसे भी मेरी कौन सुनता है। द क्वेश्चन इज ही इज डूइंग हिज वर्क, वी नीड टू डू आवर वर्क, and business people stopped doing their work and started talking about his work. This is the situation in which majority of the family businesses are going. Now added fuel to the fire. Son and daughter are now educated. When they get educated, they get a wrong notion कि अपने धंधे में तो कुछ नहीं है। अगर गूगल में जॉब मिल गई ना, स्टारबक्स की कॉफी फ्री मिलती है। अपने धंधे में रोज के प्रॉब्लम है। सो द यंग पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग चैलेंजेस ऑफ आवर बिजनेस विथ ईज ऑफ लाइफ ऑफ कॉर्पोरेट जॉब, एंड देन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ईटिंग ग्रास। दिस इज द चैलेंज विच वी आर गोइंग थ्रू। इन माय ओपिनियन, the previous generation has to understand one thing: whatever business you have is a school for the next generation to learn decision कैसे लेते हैं, failure कैसे होते हैं, तकलीफें कैसी होती है, and learn to digest all these things. Howsoever brilliant you are, आपके भी 10 में से 4 डिसीजन तो गलत होंगे ही। इवन इफ यू आर एन ऑर्डिनरी पर्सन, 10 में से 5 डिसीजन तो आपके भी सही होंगे। एंड इफ यू आर एब्सोल्युटली डम, फिर भी 10 में से 4 डिसीजन तो उनके भी सही होंगे। द डिफरेंस इज बिटवीन 4 and 6. एवरीवेयर डिसीजंस विल गो रॉन्ग, एंड वी हैव टू लर्न टू डाइजेस्ट the wrong decision. Now we are living in a time people are so afraid of going wrong, they don't walk only, decision ही नहीं लेते हैं। जब decision नहीं लेते हैं तो फिर गलत होगा ही नहीं। और ऐसे में एक गाना पॉपुलर हो गया, इतना पॉपुलर हो गया, every corner of India. Just last week I was in Kannur, Malayalam language. I just started a tone and they also started getting the song. This is a song so popular everywhere in India. Let's see whether you know this song or not. Song के first 2 words I am telling, हम होंगे, हो गया। पूरे इंडिया में ये सॉन्ग इतना पॉपुलर है। is a dangerous song, is a deadly song. What does it say? होंगे कामयाब एक दिन, आज नहीं। एब्सोल्युटली क्लियर, आज नहीं करना है। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट प्लानिंग, वी विल डू समथिंग, एक दिन, आज नहीं। ऑल द बिजनेसेस आर गोइंग थ्रू स्टेटस को, जो चलता है चलने दो। आई वर्क विथ 6,000 फैमिली बिजनेसेस। आई विल टेल यू आपके घर में क्या चल रहा है। 80% of your business comes from regular customers. नए कस्टमर डेवलप करना, नया प्रोडक्ट डेवलप करना, नई कंट्री में जाना, नई चैलेंजेस लेना, पिछले 4-5 साल में ज्यादा नहीं दिखता है। ऑन द अदर हैंड, द अपॉर्चुनिटीज आर फिनोमिनल. Business people in India who were really the fighters have suddenly lost the steam of fighting. So we talk about this one gentleman. फैमिली बिजनेस की सीक्रेट क्या है?
in Rajasthan, in Saurashtra, in a small village, family of the farmer, मदर सर के ऊपर रोटला और प्याज लेके फादर के लिए फार्म में जाती है। फादर खेती करते हैं, मदर शाम को वापस आती है लकड़ी इकट्ठा करके, जो सो जला के उसके ऊपर खाना बनेगा। वहां पे ये बच्चा बड़ा हुआ, पैदा हुआ, स्कूल में गया। वो स्कूल में एक ही क्लास है, स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 4 के सब बच्चे एक ही क्लास में हैं और एक ही टीचर सबको एक साथ में सिखाता है। This guy left the school when so-called 4th standard, and later on, without any further study, he was given honorary doctorate. ये किसान का बेटा बोल रहा है मेरे फादर से मैं क्या सीखा? खेती करते हैं ना, सांप निकलता है, डरने का नहीं, भागने का नहीं, मैनेज इट। एक, कोई भी चीज से डरने का नहीं, और दूसरा, हमेशा एक कदम आगे बढ़ाने का। जिधर भी है ना, एक कदम आगे बढ़ाने का। बस ये इतना सीखा अपने फादर से। सूरत में नौकरी करने के लिए आ गया 4th स्टैंडर्ड छोड़ के, वर्कर बना, पिछले 6 महीना उसको कुछ नहीं मिला। ये आदमी का टर्नओवर है 15,000 करोड़। वो खुद वर्कर था, आज उसके यहां पे 5,000 वर्कर है और सबकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है। ये आदमी का बायोग्राफी में पढ़ रहा था। इसने किया क्या? कुछ भी नया नहीं किया, बस फैमिली बिजनेस की सीक्रेट उन्होंने इंप्लीमेंट किया। मैं आपको बताऊं फैमिली बिजनेस की सीक्रेट क्या है। एक गांव के बाहर नियर जंगल एक गांव वाला अपने गांव की ओर वापस जा रहा है, वॉकिंग टुवर्ड्स हिज विलेज। ही सॉ अ पर्सन सिटिंग अंडर अ ट्री। रात हो गई थी, एक पेड़ के नीचे कोई आदमी जैसा बैठा हुआ लगा। नजदीक जाके देखा तो कोई आदमी बैठा है। वो उसको पूछ रहा है, ए इधर क्या कर रहा है? गांव वाला आदमी है, उसका कोई पॉलिश लैंग्वेज नहीं है। एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसा उसको नहीं आता है। ए इधर क्या कर रहा है, ऐसा बोला। लेकिन वो सामने वाला भी अलग आदमी था। तुझे क्या करना है? नाउ द विलेजर रियलाइज दिस गाय इज न्यू टू दिस एरिया, तो ही शाउटेड, ए इधर बैठने का नहीं, यहाँ पे जंगली जानवर आते हैं, ये कोई बैठने का जगह है क्या? वो आदमी खड़ा हुआ, सूट बूट पहना हुआ था। तुम गांव वालों को क्या समझ में आता है? ये देखो उधर लाइट दिख रही है, मुझे उधर जाना है। मैं इधर तक आया ना तो अंधेरा हो गया, बताओ अभी मैं क्या करूं? तुम लोगों को क्या मालूम पड़ता है? पता है वो डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर मतलब कितना फुट? 3,000 फुट होता है, 3,000 फुट। मेरे पास में टॉर्च है लेकिन 3 फुट दिखाती है, करूं क्या? अभी एक गांव वाला समझ गया कि ये आदमी है ना थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा है। उसने बोला तेरा टॉर्च दे मेरे को। हम तो गांव वाले पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन हम लोग मैजिक करते हैं। टॉर्च लिया, उसने हाथ में रखा, उसके ऊपर रुमाल लगाया, आबरा का डाबरा बम बम बोल करके मैजिक हो गया। बोला अभी तू लेके जा, तेरे को रास्ता दिखाएगा। ये आदमी भी कोई कम थोड़ी था, उसने सीधा टॉर्च चालू करके, क्या तू मेरे को मूर्ख समझ रहा है? इट्स शोइंग ओनली 3 फीट। वो आदमी ने बोला तू चल के देख। वो आदमी 3 फुट चला तो उसको दूसरा 3 फुट दिखा, और 3 फुट चला तो दूसरा 3 फुट दिखा, और 3 फुट चला तो दूसरा 3 फुट देखा। करते करते वो 3,000 फुट पहुंच गया। 3,000 फुट की जर्नी करने के लिए 3,000 फुट की लाइट नहीं चाहिए, 2 चीज चाहिए, 3 फुट की लाइट और आगे बढ़ना। यहां पे बैठे बैठे सोचते हैं तो कुछ नहीं होता है। बस ये साहब ने भी वही किया। वर्कर थे डायमंड पॉलिशिंग में, जो भी करूंगा ना मास्टरी ले लूंगा, दैट्स इट। वर्कर थे, अभी एक कदम आगे बढ़ाना है, क्या बढ़ाऊं? बोलते मैं खुद घंटी डालूंगा, दैट इज आई विल सेट अप माई ओन फैक्ट्री। 2 मशीन डाले, 100 फुट की जगह 2 वर्कर रखे।
ओनर को जाके बोला अभी तो मैं खुद फैक्ट्री डाल रहा हूं। ओनर से देख ये धंधा करना इतना इजी नहीं है, तू अच्छा कमा रहा है, कंटिन्यू टू डू द जॉब। नहीं सेठ, मेरे को आगे चलना है, एक कदम। The owner knew how good he is, so he told him, I will be your first customer. He started getting the work. 3 फुट की लाइट है, अभी और एक कदम आगे चलना है। ये मैं दूसरे का काम जॉब वर्क में क्यों करूं, मैं ही मटेरियल खरीद के करूं ना। सूरत में किसी से मटेरियल खरीदने गया, मटेरियल खरीदा और देना चालू किया, अच्छा चलने लगा, 3 फुट आगे चल गया। अभी क्या करना है, और एक स्टेप आगे। मैं सूरत से खरीदता हूं, वो लोग किधर से खरीदते हैं, वो लोग बॉम्बे से खरीदते हैं, तो मैं भी बॉम्बे चला जाऊं। उसने बॉम्बे से खरीदा, चलने लगा, सेट हो गया, 1 स्टेप फॉरवर्ड। बॉम्बे वाले कहां से खरीदते हैं, बेल्जियम से, मैं बेल्जियम से खरीदूंगा। ही वेंट टू बेल्जियम, सेट हो गया, और एक कदम। बेल्जियम वाले कहां से खरीदते हैं, इजराइल से। So I'll go to Israel, and he started doing business in Israel. Now what it was, from a worker till a 15,000 crore turnover, step was very simple. 3 फुट की लाइट है, every day चलो। To take action every day is what matters. मैं लास्ट टाइम जब आपका प्रोग्राम में था, तभी ऐसे ही आगे कोई कॉन्फ्रेंस की किसी ने प्रेजेंटेशन दिया था that he had worked out some chemical composition for one particular fragrance. And then I was asking people, आप सब लोगों ने इनका भाषण सुना, how many of you will start talking to him about taking the whatever right or technology or whatever it is? The something that has happened in Indian family businesses कि आगे कदम उठाते हैं लेकिन पीछे का करके आगे नहीं जाते, पीछे का उधर ही उधर, आगे आगे थोड़ा 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 कोशिश करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मेनली बिकॉज समवेयर वी हैव स्टार्टेड बीइंग वरीड अबाउट आवर डिसीजन गोइंग रॉन्ग। एक जमाने में डिसीजन गलत होता है तो हम हजम कर सकते थे, अभी बिस्लेरी का पानी पी पी के अपनी हजम करने की कैपेसिटी कम हो गई है। सो वी डोंट वांट टू फेल ओनली, so we want to play safest game. This is what is the difference. India's family businesses grow and continue to grow. They are among the most successful businesses in the world. After all, Indian economy started what, 1947. Really speaking, 47 was namesake. पहले तो 15 साल पब्लिक सेक्टर चला, then came 62 war, then came 65 war, then came 71 war. Real Indian businesses started somewhere in 1980. और 1980 में जिन्होंने बिजनेस चालू किया या बिजनेस में थे वो खाली घर चला रहे थे। टिल 95 बोलने लगे चलो अभी सेटल कुछ बिजनेस कर रहे हैं। 95 to 2002 all business problems, पैसा ही नहीं था। And from 2002 the kind of growth, so much so कि because we made so much money, सबकी ऑफिसेज एयर कंडीशन बन गई। एंड जब से ऑफिसेज एयर कंडीशन बन गई, अभी बाहर गर्मी ज्यादा लगती है। सो नाउ nobody walks, everybody wants to sit in the office and send email. We are very happy to introduce that we are manufacturers of so and so. ऐसे धंधा नहीं होता। 20 साल पहले हमको तो सिखाया गया था बिजनेस का एक ही रूल है, चप्पल घसो। रूल नंबर 2, जिसके भी घर जाते ना कोई ऐसा नहीं बोलता है अरे मैं तो 20 साल से आपके लिए वेट कर रहा था, आप किधर थे। सबका काम चल ही रहा है। तो when I go to sell something to someone, the other guy says I am already having it, why should I buy from you? मतलब सामने वाला ना बोलता है। फर्स्ट चप्पल घसो, सेकंड लर्न टू डाइजेस्ट रिजेक्शन, बिकॉज एवरीबडी हैज अ कोटा ऑफ सेइंग नो। 6 बार ना बोलता है ना 7वीं बार हाँ बोलेगा। जो हमने 20 साल पहले फेस किया था अभी फेस करने का स्टेमिना नहीं है। 2 बार कोई आदमी ना बोलता है तो भाड़ में गया, तेरे जैसे बहुत देखे। थर्ड, जब चप्पल घसते हैं
एंड व्हेन वी गो, जब सामने वाला ना बोलता है ना, ना में से हाँ करवाना ये अपना काम है. If you go and everybody is ready, just ready to give business, तो फिर बिजनेसमैन का जरूरत क्या था? कोई भी सेल्समैन भी तो धंधा कर सकता था. और ना में से हाँ करवाना मतलब कॉन्फिडेंस, मतलब हिम्मत. And all this is what is the strength of our family business, and that has to be transmitted to the next generation. This is what is our biggest challenge. The generation which is in the business, brilliant, hard work, but with one handicap. They don't know how to talk to their sons and daughters. बात करना ही नहीं आता है, क्योंकि जिंदगी भर हमने कभी किसी को कुछ एक्सप्लेन किया ही नहीं है. And suddenly when the son and daughter come to business, how to explain them what it is and how it is? So I always suggest all those who are in business, success of your business is not how much you have earned. Success of your business is how capable becomes your next generation. 100 करोड़ कमा के जाओगे और नेक्स्ट जनरेशन में पानी नहीं है, 1 साल में खत्म हो जाएगा. On the other hand, if you invest time and energy in grooming the next generation, then they will earn their own 100 crores. This is the point for the previous generation. As far as the younger generation is concerned, they are under the mistaken notion. वो जो कॉलेज में पढ़ते हैं ना, उनको लगता है कि वैसे धंधा होता है. What you learn in college is to prepare a background. But the reality of the business you will learn only when you get into it. First approach for the young people. You are whatever you are, not because you are genius. You are what you are, not because you are God's sent gift to humanity. You are what you are because of the same family business. I should be gratitude to my family business. Our family business is our माई-बाप. Our family business is our temple. कितना भी छोटा क्यों नहीं हो. मैं 1 रूम किचन के घर में रहता हूं, मेरे बाजू में 4 स्टोरी बिल्डिंग है. अगर मैं वहां पे स्वीपर का जॉब ले लूं ना, तो मैं वहां रह सकता हूं. लेकिन एक बिजनेस फैमिली वाला क्या बोलेगा? आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव एंड आई हैव अ ड्रीम, एक दिन उससे बड़ा घर बनाऊंगा. Family business people means we are going to be the doer, we are going to be the achiever, we are going to face the challenges, we are going to be growing. That is the spirit of business family. To younger people I will tell you, anything that a businessman does, always there is a logic. Business people can't explain everything, but there is always a logic. हमारा एक घर पे फादर और सन बात नहीं करते हैं. लड़के को अच्छा नहीं लगता है. मुझे बोलता है, सर मेरे घर में ना फादर से बात नहीं होती, बहुत बुरा लगता है. घर वाले सब बैठे हैं, फादर आता है, लड़का खड़ा होके चला जाता है. सब बैठे, लड़का आता है, फादर खड़े होके चले जाते हैं. क्या प्रॉब्लम हुआ था? 1 महीने पहले की बात है. लड़का नया नया बिजनेस में आया. क्या देखूं? कुछ भी देख. बाहर कैबिन के बाहर बैठा था, एक पुराना आदमी आया और एक दूसरा यंग लड़का था. उसको बोल रहा है, मैंने सुना है कल रात को तू 2 बजे तक बैठा था. लड़के ने बोला, हाँ ये बैंक का स्टेटमेंट देने का था, ड्यू डेट था. अरे ऐसा लेट बैठ के कुछ नहीं, कोई सेठ तेरे को बंगला नहीं बना के देने वाला है, अपना जो काम है ना उतना ही करने का. लड़के ने सुना, अरे ये तो भड़का रहा है. सीधा फादर का कैबिन में, डैड वो आपका आदमी है ना, सबको भड़का रहा है. डैड बोलते हैं बाद में बात करेंगे. लड़के को इतना बुरा लगा, मैं इतना इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आया हूं, और फादर सुनने के बदले में बोलते बाद में बात करेंगे. कोई बात नहीं. 1 वीक, 1 week, he did research and found out that this guy was highest paid. He was the oldest employee, and not only here, he was corrupting everyone. He was not doing anything. Whoever is doing, जाके भड़का रहा है. अभी फादर की कैबिन का दरवाजा थोड़ा जोर से खोल रहा है.
डैड आपको उसको निकाल देना चाहिए। डैड बोलता है बाद में बात करेंगे। अभी लड़का एकदम रेस्टलेस, इतना इंपॉर्टेंट चीज मैं लेके आ रहा हूं और बोल रहे हैं बाद में बात करेंगे। 1 more week, complete research, conclusion, this guy is the greatest liability. अभी फादर की कैबिन का दरवाजा थोड़ा जोर से खोलता है, टेबल पे हाथ मार के बोलते हैं आप उसको निकाल क्यों नहीं देते? अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। फादर सेज तू उसके पीछे क्यों पड़ा है, तेरे को बोला ना तू मार्केट देख। लड़का अभी कैबिन से बाहर निकलते, इधर कुछ बोल के फायदा ही नहीं, कैबिन में बैठे हैं, बाहर क्या हो रहा है उनको पता नहीं है, पुराने लोग अपने पुराने चमचे लेके बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं पता नहीं है, क्या इधर कुछ करके फायदा नहीं, वो निकला। एंड नाउ फादर एंड सन आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। सड़के ने मेरे को बताया, नाउ आई विल टेल यू हाउ आई हैंडल द थिंग। एक मौका मिला, मैं उसके फादर को मिला, सर अपने धंधे में क्या है, वी हैव सम सीक्रेट्स, कहां से माल लेते, कितने में लेते, कैसे बनाते हैं और किसको बेचते, कितने में बेचते हैं। ये सीक्रेट अगर कॉम्पिटिटर के हाथ में गई तो अपना तो पूरा बिजनेस गया। फादर मुझे बोल रहे प्रोफेसर उसी लिए ना, हमारा एक पुराना आदमी है, टोटल न्यूसेंस है, फिर भी मैं उसको सबसे ज्यादा पगार देके रखा हूं, क्योंकि जिस दिन मैं उसको निकालूंगा इमीडिएट मेरे कॉम्पिटिटर के पास में जाएगा और मेरा धंधा गया। रीजन था ना, लेकिन बेटे को क्यों नहीं बताया? क्योंकि बेटे ने मेरी तरह पूछा नहीं ना, बेटा तो सीधा एडवाइजर बन गया। सो माई एडवाइस टू ऑल द यंग पीपल, इफ योर फादर कैन नॉट एक्सप्लेन यू, इट डज नॉट मीन इज रॉन्ग। अगर आप आर्ग्यू करते हो और फादर आर्ग्यू नहीं कर सकता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। It is safe to assume my father is always right. My father is better than me. And if he cannot explain you, the problem is throughout the life फादरों ने कभी किसी को एक्सप्लेन ही नहीं किया। उनको एक्सप्लेन करना नहीं आता है, उसका मतलब नहीं कि सोचना नहीं आता है। Everything that a businessman does, there is a logic. It will be good if young people become humble and respect the father and learn from the father. तो अभी मैंने तो एल्डर का भी बोल दिया, यंगर का भी बोल दिया। अभी नाउ व्हाट इज द आइडियल रिलेशन? आइडियल रिलेशन इज फादर शुड बिकम लाइक अ पॉटर। ये पॉटर देखा है, कुंभार मटका बनाता है, व्हील के ऊपर मट्टी रखता है एंड द व्हील रोटेट्स। एंड व्हाट डज ही डू? अंदर हाथ सवार दे, बाहर मारे चोट। इट विल कीप ऑन बीटिंग एंड इंटरनली कीप ऑन सपोर्टिंग। दैट इज द वे अ पॉट इज मेड। द जॉब ऑफ द फादर is on one side, groom the next generation to become tough. At the same time, when they are little down, support them from inside. 10 लाख का लॉस हो गया तो रोता क्या है? मेरा तो पहला लॉस 2 करोड़ का था। धंधा होता है, लॉस होता है। This is the support. If something that you decided to start and you failed, so what? That is a good learning. एक लड़की धंधे करने जा रही थी, फादर ने बोला कर। अभी शी स्टार्टेड वर्किंग और एक पार्टी को उधार देना है 2 लाख रुपए का। फादर को पूछ रही है मैं उसको उधार दूं क्या? फादर बोल रहा है देख धंधा तुझे करना है, यू हैव टू डिसाइड। लड़की ने उधार दे दिया, अभी वो आदमी पैसा नहीं दे रहा है। फादर अभी पीछे पड़ गया, देख भाई तू धंधा कर रही है, तेरे को धंधे में लाया, ये मेरे जो जिंदगी भर की कमाई है ना बर्बाद नहीं करना है, ये मेरा 2 लाख वसूल करके ला। अभी लड़की तो पीछे पड़ गई, इतनी स्ट्रगल की, कैसे भी करके 2 लाख लेके आई। बाद में उसको पता चला कि फादर को पता था कि वो आदमी पैसा नहीं देगा। फादर न्यू दैट मटीरियल यू आर सप्लाइंग टू दिस पार्टी इज नॉट गोइंग टू पे, लेकिन उसको रोका नहीं, बोला तू दे। फिर फादर को हमने पूछा, जब आपको पता था कि वो पार्टी पैसा नहीं देगी तो फिर आपने क्यों नहीं रोका? बोला वो तो उसको सीखने का था ना। हमने बोला पैसा नहीं आता तो?
तो बोलते समझ लेते ट्यूशन फी. It's a tuition fee. But now you imagine that she gave and she learned how to recover. Now she is ready for the business. Father job is to invest time and energy with new generation. We need a dialogue. Elder generation has tremendous amount of experience. Younger generation have tremendous amount of fire. But they are different. So if we talk, if we have a dialogue, elder generation has to know, we don't know how these young people think. Let us try to understand them. Young people need to know, we don't know how these elder people think. Let us spend time to understand them. The amount of time that you are spending in your business, at least some time you should spend in inducting the next generation into family business. Spending time in talking at home is one of the best investment that you can ever make. This is my in general submission to the elder people, to the younger people. And just summarizing my talk, 3 feet light. We don't require a big plan. Whatever is the opportunity today, start walking. This is how your family business has grown. This is how family businesses all over the world grows. And all that we need is to start moving, taking decision, accepting failure, falling, getting up and start walking again. Thank you very much. Have a question? I have one question. As you explained, what are the actual challenges that we all face now in the current scenario, and what are the solutions for that? हर फैमिली बिजनेस का एक ही चैलेंज है मेरे हिसाब से. सब लोगों ने आस्था चैनल देखना चालू कर दिया. बस ये एक ही चैलेंज है. सडनली बिजनेस वाले फिलोसोफर बन गए. इतना पैसा कमा के क्या करना है? अपने पास में क्या था? देखो आज हम किधर पहुंच गए. जब भी बिजनेस वाले फिलोसॉफी की बात करते ना, ये वर्क लाइफ बैलेंस एंड ऑल दिस थिंग, मुझे बहुत डर लगता है. अभी जब बिजनेस वाले फिलोसॉफी की बात करेंगे तो फिलोसोफर लोग क्या करेंगे? बेचारे वो लोगों को अभी धंधे में आना पड़ा. आस्था चैनल 16 करोड़ में खरीद के जो धंधा खड़ा किया, आज तो 20,000 करोड़ का धंधा है ना. और बिजनेस वाले बोलते हैं अपनी को पैसा कमा के क्या करना है. दिस इज वन. बिकॉज ऑफ दिस जो फायर है ना वो कम हो गया. आई एम 62. सवाल यह कि आई एम ओनली 62 की ऑलरेडी 62. टू मी आई एम ओनली 62. तो अभी तो मुझे बहुत काम करना है. एंड आई कम अक्रॉस बिजनेसमैन, सर अभी तो मैं 50 का हो गया, अभी मेरे पास मेरे और कितने साल काम करना है. व्हाट अ रबिश स्टेटमेंट. बिजनेसमैन का धर्म है, धर्म, लास्ट ओवर के लास्ट बॉल तक खेलना है. दिस इज द स्पिरिट. ऑफ कोर्स कोई पत्थर तोड़ने का काम थोड़ी है, बट अपना दिमाग है ना घिस नहीं जाता है. Every passing year our wisdom grows, our contact grows, our knowledge grows, our confidence grows, our ability grows. If our next generation doesn't take benefit of this, then what is the use? तो ये रिटायरमेंट वर्ड ना फोकस है. वर्क लाइफ बैलेंस ये सब ठीक है, करना है योगा उतना कर लो, मेडिटेशन करना है कर लो, लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट अगले साल डबल करने का है, वो प्लान पहले होना चाहिए. बाद में जो करना है करो. दिस इज द मेन पॉइंट. Thank you. I would request Jaideep Bhai to throw questions which he has in his mind, because he is also an example of a family managed business. He is a second generation and his daughter is there in the third generation in line. I have no questions because most of the questions he has already answered. But to the audience present over here, I will say that
in a very short period, he has given you a 1 crore MBA course. Thank you very much, sir. So I request Piyush Bhai to felicitate. Please bring the felicitation. डॉक्टर साहब, आपने जो बोला बहुत हद तक बहुत बढ़िया से बोला. मतलब आई कैन इमेजिन, कभी कभी मैं भी आज के टाइम में, नाउ आई एम 42, ये सोच लेता हूँ जो किया है बढ़िया हो गया, ठीक है, लेकिन नाउ टुडे व्हाट आई हैव लिसन और आपने जो भी समझाया, आई एडमिट कि ये हमें बिल्कुल अपनी एनर्जी कहीं भी लूज़ नहीं करनी है, हाँ, वेस्ट नहीं करनी है. वी आर द फाइटर्स. हाँ, इन्वेस्ट करनी है. वी हैव टू इन्वेस्ट. थैंक यू सो मच. So I request Jaideep Bhai, please felicitate and give the moment. And Piyush Bhai also. Dr. Merchant. Please come. આપણે આગળ આવી. Well, thank you so much, sir. That was a wonderful speech, and we all loved it and were inspired from this wonderful few minutes that we got from your precious time. Thank you. I would request the audience if they have any questions to pass on. I will be available. I am here. He, yeah, he can. He'll be in the crowd. He can talk one to one. Thank you. I request Mr. Jaideep Gandhi to please felicitate Kamlesh Shah, sir. Thank you so much, sir, for being a wonderful moderator. Thank you so much, sir. And well, it is correctly said about sir that we had a free, amazing MBA session. We got so many insights from sir. I think it's time that we move forward with the event. This was the last session of the day. Can we have a big round of applause for all of you for coming here, for all our guests, for all the team members. And it's time that we go for our next break. Right now, it's gonna be our high tea and networking session. High tea starts at 5 p.m. in the section on the left-hand side of the stage. Till then, we have the networking time. We would love if you guys connect with each other, network, get to know more about each other's businesses, get to know more about aroma, get to know more about fragrances, get to know more about businesses, and that's how we can grow together. Thank you, ladies and gentlemen. This is the Meet Convention and Expo 25th year of FAFAI, ladies and gentlemen. Thank you so much for being a part of it. We'll see you guys tomorrow again here, and we'll have again some of the most wonderful sessions where you will get amazing insights. Till then, I'll be signing off. My name is Sahil Agarwal. Hope to see you soon tomorrow. Have a very, very, very good evening and a superb night. We have an amazing session planned out in the hotel, so I'm very sure you guys are not going to miss it, and have a wonderful time in the evening today. Thank you.